আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকত। হুজুর, আমার একটা প্রশ্ন হলো, যারা ওয়াহাবিদের সঙ্গে সম্পর্ক করছে তাদের কি হবে, এবং যারা জেনে শুনে তাদের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে তাদের কি হবে? আরো একটি প্রশ্ন হলো, যদি কোনো সুন্নি ওয়াহাবির মেয়েকে বিয়ে করার পর অথবা তাদের শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে করার পর কলেমা না পড়ে থাকে, তাহলে সেই সুন্নির সন্তানাদি হালাল নাকি হারাম? সিহাহ তিরমিজিতে হাদিস আসছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলছেন, ইযা ফাআলাত উম্মতি 15 খাসলাতান হাল্লা বিহাল বালা, যখন আমার উম্মতিরা এই 15টা কাজ করবে, আসমান থেকে তাদের জন্য বালার দরওয়াজাকে খুলে দেওয়া হবে। কটা? 15টা। ইযা কানাল মাগনামু দুয়ালা ওয়াল আমানাতু মাগরামা ওয়াজ যাকাতু মাগনামা, যখন কিয়ামতের আগে গরিব ফকিরের মালকে লুঠের মাল হিসাবে খাওয়া হবে, আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। হচ্ছে না? হচ্ছে না? ওয়াল আমানাতু মাগরামা, আর যখন আমানতে খেয়ানত শুরু হয়ে যাবে, আপনার কাছে মাল রাখতে দিলাম, আপনি খেয়ানত করলেন, তখন আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। আর যখন যাকাত আলেমরা, হাফেজরা, কারীরা যখন সাধারণ লোককে যাকাতের কথা বলবে, কেমন লাগবে? বলছে, বিনা টিকিটে টিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলে ওর চেহারা যেমন হয়ে যায়, তা বলছে আলেমরা যখন যাকাতের কথা বলবে তখন ওদের চেহারাগুলো এরকম ছোট হয়ে যাবে। তারপরে ওয়ারতাফাতিল আসওয়াতু ফিল মাসাজিদ, মসজিদে যখন উঁচু আওয়াজে ঝগড়া শুরু হবে, তখন আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। মসজিদে ঝগড়া হচ্ছে না? হচ্ছে না? হ্যাঁ, সভাপতি, সেক্রেটারি, কমিটি ঝগড়া শুরু। বাংলাদেশে ঝগড়া তো দূরের কথা, মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলবে না বালার ফ্যাক্টরি নেমে আসবে? তাই না? এত বড় জুলুম যদি হয়। তারপরে ইদা ওয়া আতাআর রাজুলু যাওজাতাহু আক্কা উম্মাহু, সমাজের যুবকরা যখন স্ত্রীর মোহাব্বতে মাকে ধাক্কা মারবে, সেই সময় আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। স্ত্রীর মোহাব্বতে মাকে ধাক্কা দিবে, এরকম ভালো ছেলে সমাজে আছে না নেই? এ ভালো ছেলে আছে না নেই? হ্যাঁ, অবশ্যই রয়েছে। স্ত্রীর মোহাব্বতে মাকে ধাক্কা মারার মতো ভালো ছেলে সমাজে রয়েছে, বাড়িতে বাড়িতে। তারপরে বাররা সাদিকাহু ওয়া জাফা আবাহু, যখন সমাজের যুবকরা বন্ধুদেরকে খুশি করার জন্য আব্বার সঙ্গে ঝগড়া করবে, তখন আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। এ ভালো ছেলে আছে না নেই? আছে। এই তো আসছে সময়, ডিসেম্বর চলে এলো, তো আর 4 দিন পরে পিকনিক হবে না? ঢোল, হ্যাঁ, বক্স নিয়ে শুরু হবে। রাত 12টার সময় যুবক বলবে, আব্বু हमको जाना है। আব্বু বলবে, না, যাওয়া হবে না। তবে আমি যাব, তুমি কি করতে পারো করো। এই তো হবে। তারপরে লবসুল হারির, যখন কিয়ামতের আগে রেশমের কাপড় পরিধান করবে যুবকরা, সেই সময় আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। ওয়াত্তাখাযাতিল কিনাত ওয়াল মাআজিফ, যখন রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট প্যান্ডেল করে, টেন্ট লাগিয়ে, বক্স লাগিয়ে নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী একসঙ্গে ডান্স করবে, আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। বলুন, এগুলো হচ্ছে না? হচ্ছে না? তারপরে শুরেবাতিল খুমুর, যখন মদ পান করা সমাজে সাধারণ ম্যাটার হয়ে যাবে, সেই সময় আসমান থেকে বালার দরওয়াজা খুলে দেওয়া হবে। এখন মদ পান হচ্ছে না? হচ্ছে না? কি আপনাদের দিকে হয় না মদ পান? বলুন তাহলে। মদ পান হচ্ছে। এখন আবার কি গ্রামগঞ্জের যারা শিক্ষিত নয় ওরা মদ পান করে, আর যারা শিক্ষিত ছেলে ওরা মদ নয়, বিয়ার পান করে, ব্র্যান্ডি পান করে, হুইস্কি পান করে, আরো কিছু হলো। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৫০০ বছর আগে জানিয়েছেন, ইয়াশরিবুনাল খামরা দুনা ইসমিহি, কিয়ামতের আগে আমার উম্মতির মধ্যে লোকেরা মদ পান করবে,
মদের নাম পরিবর্তন করে দিয়ে। শরাব থাকবে হাতে, কিন্তু নাম শরাব থাকবে না, নাম শরাব থাকবে না। এটা হচ্ছে না, হচ্ছে না? খবরদার সমাজের যুবকরা শোনো, এই জিনিস থেকে দূরে এসো। আমাদের সমাজে আমরা যার তার সঙ্গে দোস্তি করি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞাসা হলো, হুজুর আইয়ু জুলসাইনা খায়রুন, কোন দোস্তি, কোন মজলিস, কোন মাহফিল উত্তম? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, শোনো, মান যাক্কারাকুমুল্লাহু রুয়াতুহু, যাকে দেখলে খোদা ইয়াদ আসবে সেই হলো তোমার বন্ধু। এখন दोस्त दोस्त को देखने के बाद सिनेमा हॉल तो जरूर याद आता है, खुदा याद कहां आता है? ये हदीस में है कि हकीकत में दोस्त वही होगा जिनकी रूयत तुम्हें खुदा की याद की तरफ बुलाएगा। और ये है कहां? हमारे यहां नहीं है। फिर ज़ादा ज़ादकुम ज़ादा फी इल्मिकुम मंतिक़हु, जिससे कलाम करने के बाद आपके इल्म में इजाफा होता है, वो तुम्हारा हकीकी दोस्त है। ये होता है हमारे मुल्क में? नहीं है। दोस्त दोस्तेर संगे गल्प करले दु चारटे गाली इजाफा হয়, যে গালিটা ওর জানা ছিল না ওটা ফের জেনে যায়, ইলমে ইজাফা হয় না। যুবক শোনো, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, লা তাজুলু কদামা ইবনে আদম ইয়াউমাল কিয়ামতে হাত্তা ইউসআলা আন খামসিন, কিয়ামতের দিনে পাঁচটা সওয়ালের জবাব যদি না দিতে পারে তো আদমের আওলাদরা একটা ধাপ আগাতে পারবে না। আল্লাহু আকবার। কটা? পাঁচটা। পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে কেউ আগাতে পারবে না। কি? আন উমরিহি ফিমা আফনাহু, ওর জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হবে, লাইফকে কোন জায়গাতে কাটিয়েছে। আন শাবাবিহি ফিমা আবলাহু, ওর জওয়ানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হবে, যৌবন কোন জায়গাতে ক্ষয় করেছে। আন মালিহি মিন আইনা ইকতাসাবাহু, ওর ধন সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হবে, ও কোন জায়গা থেকে কামিয়েছিল। ওয়া মিন আইনা আনফাকাহু, আর ধন সম্পদকে কোন জায়গাতে ও খরচ করেছিল। ওয়া মাযা আমিলা ফিমা আলিমা, আর যা যা আলেমদের কাছ থেকে শিখেছিল তার উপরে আমল কি করেছিল। এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর যদি না দিতে পারে তো ইবনে আদম, আদমের আওলাদরা কিয়ামতের দিনে একটা ধাপ কেউ আগাতে পারবে না। আজ আমরা কোন জায়গাতে আছি? আজ আমাদের হাকিকত কি? আমাদের রিয়ালিটি কি? আমাদের কাছে তো কিছুই নেই, কিছুই নেই। আমাদের অবস্থা কি? ইমাম আহলে সুন্নাত আলা হযরত সরকার লিখছেন, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों सोने वालों सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। তো যদি 150 বছর আগে তিনি এই নসিহত করে যান, এখন আমাদের হাকিকত দেখলে কি বলতেন? ইমাম আহলে সুন্নাত লিখছেন, अरे दिल में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ফজরের আজান হয় বিছানাতে শুয়ে থাকে, এশার আজান হয় ফ্রি ফায়ার আর পাবজিতে। আরে শর্মে নবী খৌফ খোদা, আল্লাহর দেখে ভয়ও নেই, নবীর দেখে লজ্জাও নেই। রিজকে খোদা খায়া কিয়া, फरमाने हक टला किया, अरे शुक्र करम तर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। আল্লাহ পাকের রিজক খুব খেয়েছে আর আল্লাহর সঙ্গে জবরদস্ত নাফরমানি করেছে। খোদার রিজক খেয়ে কোনদিন আলহামদুলিল্লাহ বলে না, আর খোদার সঙ্গে নাফরমানি করে কোন আস্তাগফিরুল্লাহ মাআযাল্লাহ পড়ে না। ये भी नहीं वो भी नहीं। এই তো আমাদের অবস্থা। আল্লামা ইকবাল, মহাকবি ইকবাল, डॉक्टर इकबाल लिखছেন, वदा में हो तुम नसारा, तमद्दुन में हो हुनूद, ऐ मुसलमान तुम्हें देखकर शर्माए यहूद। ऐ मुसलमान জাতি, তোমাদের চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছে তোমরা পাশ্চাত্য দেশের খ্রিস্টান, আর তোমাদের দাঁড়িয়ে পেশাব করা দেখে মনে হচ্ছে তোমরা স্বদেশী হিন্দু। তোমাদের চরিত্র দেখে রোম সাম্রাজ্যের ইহুদি জাতি পর্যন্ত লজ্জায় পড়ে যায়।
তো আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাই সেই যুগে যদি এই কথা লিখে যান, যে যুগে 4G 2G 3G ছিল না, এখন যদি আমাদের সামনে থাকতেন আল্লামা ইকবাল কি লিখতেন একবার চিন্তা করুন। খবরদার নয় যুবক শুনুন। আর দুটা কথা বলে দিই, আমাদের সুন্নিয়তের মধ্যে মাসলাকে আলা হযরতে আমরা দাগ লাগাচ্ছি, ভুল করছি আমরা, गलती होती है हमारी तरफ से, मगर लोग उंगलियां उठाते हैं इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की तरफ। लोगों जरा केयरफुल हो जाओ, मसला के आला हजरत को जरा समझो, चलो चलो आला हजरत के दिखाए हुए रास्ते पर, जिसका नाम सिराते मुस्तकीम है, उस पर सुन लीजिए। এখন পীর উঠেছে, পীর 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 কি পীর? দক্ষিণ দিনাজপুর আছে না, এদিকে একটা পীর আছে, পীর का नाम है जिंदा काबा। हाँ हेलो, मालदा कुतुबगंज की तरफ एक पीर है, पीर का नाम है जिंदा काबा। और हमारे कलकत्ता मेदिनीपुर की तरफ एक मजार है, वहां भी मजार पे तवाफ होता है। পীর সাহেব বসে থাকে এইরকম করে, আর ওর চারিদিকে মুরিদরা ঘুরছে, লব্বাইক আল্লাহুম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারীকা লাক লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাক ওয়াল মুলকু লা শারীকা লাক। এটাই চলছে। ওদের কথা হলো এই, আরব যাওয়ার দরকার নেই, আমাদের পীর হলো জিন্দা কাবা, এর চারিদিকে ঘুরলে তাওয়াফ হয়ে যাবে, হজ হয়ে যাবে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সারা দুনিয়াতে একমাত্র কাবা ঘর ছাড়া কোন ঘরের তাওয়াফ করা চলবে না। কোন জিন্দা পীর যদি নিজের তাওয়াফ করায়, ওকে পীর মানাও হারাম, ওর হাতে মুরিদ হওয়াও হারাম। मेरा वही पुराना नारा है जो आज से 4 साल पहले लगा था, और जिसके लिए मालदा की तरफ कुछ मतलब जो है मसले भी पेश आए थे, मगर मैं वही बात आज भी कहता हूं, हम किसी जाहिल को पीर नहीं मानते, जिसे हम पीर मानते हैं उसे हम जाहिल नहीं मानते। क्यों? अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह दर्स दिया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। मैं अब्दुल कादिर हुसूल इल्म में लगा रहा, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मनसब कुतबियत पर फाइज फरमाया। तो अब्दुल कादिर जीलानी দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পীর, তার পীর হওয়ার জন্য শিক্ষা লাগে। আর এখন আমাদের সমাজে जो जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा पीर, हम नहीं मानते। पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान, खबरदार নাই। তারপরে সেজদা, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে সেজদা করা চলবে? সেজদা কার সামনে হবে? একমাত্র আল্লাহর সামনে। অথচ দেখা যাচ্ছে পীরের সামনে সেজদা হচ্ছে, মাজারে সেজদা হচ্ছে, আর समस्त बद मजहबरा 5-5 उंगलियां आला हजरत की तरफ दे रहे हैं कि देखो सब बरेली लोग क्या कर रहे हैं। खबरदार नहीं, तुम्हारे इमाम ने इसकी मुखालिफत में मुस्तकिल रिसाला लिखा, जिसका नाम अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया फी तहरीम सुजूद तहिया। এই কিতাবের মধ্যে 40টা হাদিস, 150টা আকওয়ালুল উলামা দিয়ে প্রমাণ করিয়েছেন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারোর সামনে সেজদা করা চলবে না। যদি কেউ মাজারে গিয়ে সেজদা করে আর পীর সাহেব মানা না করে, আর যদি পীরের সামনে সেজদা হয় পীর সাহেব মানা না করে, ওকে পীর মানাও হারাম, ওর হাতে মুরিদ হওয়াও হারাম। চলবে না, খবরদার নয়, খবরদার, এসব চলবে না। তারপরে কি আমাদের সমাজের কথা আছে, 7 मरतबा अजमेर जाने से एक हज का सवाब मिल जाता है। भाई किसने सिखाया आपको? हैं? 7 बार क्या 7000 बार चला जाए, या फिर ये ग्वाल पुखर छोड़ के अजमेर जाके घर बसा ले, तब भी हज का सवाब नहीं मिलेगा। जाना तो दूर की बात, वहां जाके रहने लगे कोई, तब भी हज का सवाब नहीं मिलेगा। हत्ता के मुस्तफा की बारगाह में कोई बंदा 1000 बार हाजिरी लगा दे, वो उम्रा तो उसका हो जाएगा, मगर वो उसका हज नहीं होगा, वो हाजी नहीं कहलाएगा। हज आलूदा जिनिस। खबरदार सुन्नियों, इन चीजों से जहालत से दूर आओ, बाहर आ जाओ। जहालत का नाम सुन्नियत नहीं है। जहां जहालत है वहां सुन्नियत नहीं है, जहां सुन्नियत है वहां जहालत नहीं है। खबरदार,
মাসলাকে আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি এই আয়নার থেকে সাফ শাফাফ, এই যে চোখের যে আমার এখানে গ্লাস আছে না, যদি এর উপর কালি লাগিয়ে দিই দেখতে পাবো আমি? কি বলবো? দুনিয়া অন্ধকার, দুনিয়া অন্ধকার। কিন্তু আসলে দুনিয়া অন্ধকার না চশমার গ্লাস অন্ধকার? দুনিয়া রৌশন আছে, গ্লাস অন্ধকার। খবরদার, মাসলাকে আলা হযরত এর চাইতেও সাদা, এর চাইতেও ক্লিন, এর চাইতেও সাফ, এর চাইতেও শাফাফ। তো আমি আপনি এমন কোন কাজ করব না যার দ্বারাতে আলা হযরত বদনামি হন। আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি দর্শ দিয়েছেন কিভাবে? মাজারে যাও, 4 হাত দূরে দাঁড়িয়ে আদবের সঙ্গে সূরা ফাতিহা পড়ো, 4 কুল পড়ো, তাসবিহ পড়ো, ওয়াজায়েফ পড়ো, তারপরে ফাতিহা করে দোয়া করে বাড়ি চলে এসো। রুকু करने की जरूरत नहीं है, सजदा करने की जरूरत नहीं है, बिला वजह चूमने की भी जरूरत नहीं है। কত সাফ মাসলা। আজ আমরা কি করছি? খবরদার নয়, এর সঙ্গে দিন ও সুন্নিয়তে কোনো সম্পর্ক নেই। আলা হযরত কি শিখিয়েছেন? या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, है ना? कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे आला हजरत ने ये नई बात अपनी तरफ से घड़ कर दिया है। मैंने कहा नहीं भाई, हदीस में है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया की तरफ आए तो 309 साल तक हमारे तुम्हारे बाप हजरत आदम ने आसमान की तरफ सर को उठाया नहीं, सर को बुलंद नहीं किया, मगर वो रोते रहे, तौबा करते रहे, अल्लाह की बारगाह में दस्तक देते रहे। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में चंद कलिमात अल्लाह की तरफ से इल्का किए। कुरान में है फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाया और कहा, मौला इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, मौला अब तक मैं अपने एक्सपीरियंस से तेरी बारगाह में दुआएं करता रहा, मगर आज मैं मांगता हूं मुस्तफा के वसीले से। तो हदीस में है गुफर आदम, अल्लाह ने आदम की तौबा को कबूल कर लिया। फिर अल्लाह ने पूछा, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन, आदम ये तुम बताओ मुस्तफा को तुमने कैसे पहचाना? कहा, मौला इद नफ़ख़्त फ़ीया मिन रूहिका, जब तूने मेरे जिस्म में रूह को डाली, वरफ़अतु रासी, मैंने सर को बुलंद किया, फ़रअयतु अला बाबिल जन्नत मक्तूबन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने देखा जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब लोगों बताओ, घर के दरवाजे पर नाम उसी का होता है, मकान जिसका होता है। बाबा थोड़ा नाम लिख लो इनका, जाइए। तो मकान के दरवाजे पर नाम उसी का होता है, मकान जिसका होता है। तो जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है, गोया जन्नत तुम्हारे रसूल की है। तभी तो इमाम बोल पड़े कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत रसूलुल्लाह की है। अब आइए जो मैं कहना चाह रहा था, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, ये आला हजरत ने अपनी तरफ से बना करके पेश नहीं फरमाया, बल्कि किसी इल्म वाले के पास अब चले जाओ। हजरत आदम ने अरबी में कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, इसी अरबी को अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए बन जाएगा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। आला हजरत ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिखी, बल्कि हमारे बाप तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अरबी दुआ को उर्दू में तर्जुमा करके हम तक पहुंचा दिया, कुछ नया नहीं लिखा। ठीक है, खबरदार मसला के आला हजरतेर উপরে মজবুতির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা, আমরা কারা? আহলে সুন্নাত, তাই তো? এখন আমার কিছু যুবক বের হয়েছে, তারা বলছে আমরা আহলে হাদিস। তো হবে কোনটা? আহলে সুন্নাতটা ঠিক না আহলে হাদিসটা ঠিক? বাংলাদেশের বেশ কিছু আলেম ফতোয়া দিয়েছে জান্নাতে যাবে একটাই দল, তার নাম হলো আহলে হাদিস।
जन्नत में जाएगा एक ही फिरका, और उसका नाम अहले हदीस। मैंने कहा भाई अहले हदीस नाम की कोई फैक्ट्री दुनिया में है ही नहीं, तो माल निकलेगा कैसे? फैक्ट्री होगी तब तो माल निकलेगा। तो बोले अहले सुन्नत की फैक्ट्री है। मैंने कहा फैक्ट्री भी है, गोडाउन भी है, होलसेल भी है, रिटेल भी है, जो बोलोगे मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। बोले वो कैसे? मैंने कहा उठाइए, सिहा सित्ता है ना, तिरमिजी शरीफ, नाम सुना आपने तिरमिजी का? बुखारी मुस्लिम, उसके बाद आता है नंबर तिरमिजी का। तिरमिजी उठाइए, तिरमिजी शरीफ के अंदर है मिन अहलिल इल्म मिन अहली सुन्नत वल जमाअह। ये अहलुस सुन्नह का जो लफ्ज है, जो जुमला है, ये सिहा सित्ता की तिरमिजी शरीफ के अंदर मौजूद है। दुनिया में कोई बंदा अहले हदीस नाम की कोई फैक्ट्री साबित नहीं कर सकता, मगर अहले सुन्नत की कंपनी है, मैं साबित कर दूंगा हदीस से। अब आइए, दुनिया में जब कोई नया ब्रांड आता है, लॉन्च होता है, तो उसके प्रमोशन के लिए उस चीज को बड़े आदमी के हाथ में थमा दिया जाता है। यूट्यूब, फेसबुक या टेलीविजन पर वो दिखा देते, ऐड देते हैं, वायरल हो जाता है वो सामान। तो अहले सुन्नत तो मुस्तफा के जमाने का है, मगर इसको प्रमोशन किसने किया और कहां पर किया, ये सवाल है। तो अहले सुन्नत का प्रमोशन हजरत इमाम हुसैन ने करबला की सरजमी पर कर दिया था। फिर लोग पूछेंगे मौलवी अहमद रजा क्या आपके पास कोई दलील है? मैंने कहा उठाइए, अल कामिल फी तारीख, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी किताब का नाम है ये। उसमें है इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया, अवलम यबलुकुम कौलुन मुस्तफीद, ऐ लोगो क्या तुम्हारे कानों तक मेरे नाना की वो बातें नहीं पहुंची? काला ली वले अखी हसन, मेरे नाना ने मेरे बारे, बड़े भाई हसन के बारे में फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐनी अहलिस सुन्नत वल जमाअह। ऐ हसन और हुसैन, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और अहले सुन्नत की आंखों के तारे हो। ये बात लिखी हुई है वहां पर। अब आइए थोड़ा अहले हदीस के घर में चलते हैं, जरा उनकी लाइब्रेरी में भी छन्नी मारते हैं, देखते हैं क्या है, छान मारते हैं उधर भी। तो अहले हदीस की लाइब्रेरी में चलते हैं, तो उनके सबसे बड़े मौलवी दुनिया के अंदर, जो अहले हदीस के यहाँ सबसे बड़ा मौलवी है, क्या नाम है? मौलाना इब्न तैमिया। वो अगर पूब को पश्चिम कह देते ये लोग मान जाते हैं, वो अगर उत्तर को दक्षिण बोल दे ये लोग मान जाते हैं। तो अहले हदीस के मौलवी मौलाना इब्न तैमिया अपनी किताब मजमुअतुल फतावा 20 जिल्दों पर है। मुझे मालूम है मगरिबी बंगाल में किसी अहले हदीस मौलवी के पास एक किताब नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। इस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 92 के अंदर लिखते हैं, फ़इन्नल फ़िरक़त नाजिया हिया अहलुस सुन्नत वल जमाअह, जन्नत में जाएगी एक ही जमात और उसी का नाम है अहलुस सुन्नत वल जमाअत। ये बात उन्होंने भी लिख दिया है कि अहले सुन्नत के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा अहले सुन्नत। अब आइए इमाम से पूछ लेते हैं, इमाम आप कुछ कहिए, आपके नाम का जलसा है। इमाम कहते हैं, अहमद रजा सुनना चाहते हो? सुन लो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाब हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हमारे एक हाथ में दामन सहाबा है, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत है, और जो लोग दोनों को इकट्ठे मानते हैं वही जन्नत में जाते हैं। उसी का नाम अहले सुन्नत हुआ करता है। कुछ लोग हजरत अली की मोहब्बत में अबू बकर, उमर और उस्मान पर भोंकते हैं। ये शिया राफिजी होते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा पर भोंके, इसको क्या कहते हैं? ये राफिजी हैं। और जो सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत पर जुबान खोले, इसको खारजी कहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हाथ में दामन अहले बैत रखते हैं, एक हाथ में दामन सहाबा किराम रखते हैं। हम ना राफिजी हैं ना खारजी हैं, हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं। हमारे जवान आजकल कान में ईयरफोन लगा के बहुत सुन रहे हो, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। नहीं भाई, ये कव्वाली गलत है। नुसरत फतेह अली खान एक कव्वाल था, वो कोई आलिम नहीं था। इसका सच और हक नारा ये है, दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, अली का चौथा नंबर।
ये है अहले सुन्नत का नारा। ये नहीं है कि अली का पहला नंबर, खबरदार नहीं। बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, तिरमिजी उठाओ, सियासत की किताबों को पढ़ो, हर जगह में है अबू बकर का पहला नंबर, अली का चौथा नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर। यही अहले सुन्नत की तरतीब है। खबरदार, इससे हटना नहीं है। या तो अगर आसान कर दूं, मस्जिद में चले जाएं, मिंबर होगा मस्जिद में, मिंबर के ऊपर जो किताब पड़ी हुई है जो इमाम साहब हर हफ्ते को पढ़ते हैं, उसी को खोल लीजिए, सफा अव्वल उठाइए और पढ़िए। लिखा हुआ है अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक हुआ अबू बकर as-सिद्दीक। तहकीक के बाद यही बात पता चली, मुस्तफा के बाद सबसे अफजल और आला जात जो है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। खबरदार लोगों, शियों से हमारा कोई ईमानी ताल्लुक नहीं है। शियों की अजान जानते हैं? हमारा अभी जो घर है मुर्शिदाबाद में है। हमारा पहला घर जो कलकत्ते में है, उधर भी घर है, मगर अभी रहते हैं मुर्शिदाबाद में। तो हजार दुआरी का नाम सुना आपने? हजार दुआरी। तो एक दिन मैं गया वहां, मगरिब का वक्त हो गया, अजान शुरू हो गई। मैं बंदा हैरान परेशान हो गया कि भाई दाढ़ी वाला, जुब्बा वाला इंसान, टोपी वाला नमाज में अगर शामिल ना हो तो फिर लोग क्या कहेंगे। और मैं इससे भी डर रहा था कि पता नहीं इमाम कौन होगा, जाने के बाद अगर वापस आ जाते हैं तो ये भी खराब होगा। मैं वहां खड़ा रहा, अजान होती रही। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुअज्जिन ने कहा, तब तक मैं हैरान था। इसके बाद मुअज्जिन ने ये कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलियुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। ये अजान में कहा। तब मैं मुतमईन हो गया, माशाअल्लाह। अगर लोग पूछते कि मौलाना मस्जिद क्यों नहीं गए, मैं जवाब दे दूंगा कि ये शियों की मस्जिद है। हमारी अजान खत्म होती है मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्या है? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद क्या है? हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह। मगर उनके यहाँ अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद क्या है? अशहदु अन्ना अलीयन वलियुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। मैं गवाही देता हूँ अली अल्लाह के वली हैं और मुस्तफा के बाद अबू बकर भी नहीं, उमर भी नहीं, उस्मान भी नहीं, सिर्फ अली का नंबर है। ये उनकी अजान है, जिनकी अजान हमारी अजान की तरह नहीं, जिनकी नमाज हमारी नमाज की तरह नहीं, जिनका अकीदा हमारे अकीदे की तरह नहीं, जिनकी इबादतें हमारी इबादतों की तरह नहीं, उनके साथ हमारा ईमानी ताल्लुक नहीं हो सकता। हम नहीं कर सकते उसके साथ। खबरदार जुबोक, ईरान के जो सपोर्ट करते हैं करो, कि शियाबाद के सपोर्ट करो ना। हैं? अभी जो है उधर का कुछ मामला फंसा था, ईरान ने चंद गोलियां मार दी, हमारे जवान जो है ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की तस्वीर बना के रखने लगे और मानने लगे कि भाई दुनिया के सबसे बड़े इमाम है। नहीं, हम तो जान देना हमें मंजूर है, शियों की इमामत हमें मंजूर नहीं है। मरना तो है भाई, आज तो कल नहीं तो परसों मरना तो है, और एक ही बार मरना है। अगर ऐसा होता कि भाई मैं कैसे 3-3 4-4 बार मरूं, एक बार जो है आपके ग्वालपुखर में आया हूं, यहाँ भी मरना पड़ेगा, फिर कलकत्ता जाऊंगा वहां भी मरना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुर्शिदाबाद में जाऊंगा वहां भी नंबर आएगा। ऐसा तो नहीं है, एक ही बार जाना है। तो बस ईमान के साथ चलो ना, ईमान के साथ चलो। खबरदार, शियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, खबरदार नहीं है। बोलिए, बस तकरीर यहां पर है। कोई सवाल वगल है कुछ? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकाতুহু। হুজুর, আমার একটা প্রশ্ন হলো, যারা ওয়াহাবিদের সঙ্গে সম্পর্ক করছে তাদের কি হবে, এবং যারা জেনে শুনে তাদের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে তাদের কি হবে? আরো একটি প্রশ্ন হলো, যদি কোনো সুন্নি ওয়াহাবির মেয়েকে বিয়ে করার পর অথবা তাদের শরীয়ত অনুযায়ী বিয়ে করার পর কলেমা না পড়ে থাকে, তাহলে সেই সুন্নির সন্তানাদি হালাল নাকি হারাম? দেখুন, যারা ওয়াহাবি, খাস ওয়াহাবি, খালিস ওয়াহাবি, তাদের আকীদা আমি 2-3টে বলে দিচ্ছি। তাদের আকীদা হলো এই যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আমাদের মতো হাত, পা, নাক, চোখ, কান আছে।
এদেরকে বলা হয় আল ফিরকা আল মুজাসসিমা হলো। এবং তাদের কিতাবে লেখা আছে যে আল্লাহ পাক যখন কুরসিতে মানে আরশের উপরে আর রহমানু আলাল আরশি ইস্তাওয়া আছে, তো আরশে যখন বসেন তো আরশ চিড়চিড় চিড়চিড় করে ফাট ধরে। এই আকীদা হলো কুফরি আকীদা। তাদের আকীদা হলো যে আমাদের হাতের লাঠি, লাঠি বোঝেন, लाठी आसा डंडा, हमारा डंडा कुत्ता मारने में काम आता है, नबी से माअज़ल्लाह इतना भी नहीं हो सकता। चलो তারপরে শাফাআতের মুনকির হবে এরা। এই টাইপের ওয়াহাবি যদি হয় তাদের সঙ্গে বিয়ে করা সম্পূর্ণ হারাম, সম্পূর্ণ হারাম। মারা গেলে চলবে না, জি না। যদি কারোর আকীদা সরাসরি এই রকম থাকে যেরকম বললাম আমি, তাহলে তারা কাফের, ওদের সঙ্গে চলবে না। এইবার একটা अहम কথা হচ্ছে এই ফতোয়া कभी आम लोगों पर नहीं होता है, ये उलमा किराम जानते हैं। देवबंद में जितने लोग बसते हैं हर कोई काफिर दुनिया में कोई मुफ्ती कह सकता है? अगर आम लोग को समझाने के बाद ना समझे तो समझा रहा हूं कि अच्छा बोलो, कोई मुफ्ती दुनिया का नहीं कह सकता कि देवबंद में जितने लोग हैं सब कोई काफिर है, नहीं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि बरेली में जितने लोग हैं सब कोई मोमिन है। बरेली में बसने के बावजूद काफिर हो सकता है, देवबंद में रहने के बावजूद मुसलमान हो सकता है, ठीक है। तो आम लोकेर उपरे कोनो फतवा হবে না, সাধারণ লোকের উপরে কোনো ফতোয়া হবে না। এইবার আমার হযরত যেটা বললেন, যদি সাধারণ লোক হয় তাকে তাদের বদ আকীদা যেগুলো আছে ওগুলো জানাতে হবে। জানার পরে যদি বলে যে না আস্তাগফিরুল্লাহ এই আকীদার সঙ্গে আমি একমত নয়, মুত্তাহিদ নয়, मुत्तफिक नय, ये मेरा अकीदा नहीं है, इस पर मैं नहीं रहता हूं, तो फिर उसके साथ ताल्लुक रखा जाएगा। और समझाने बुझाने के बाद अगर कहे कि नहीं हम भी इसी अकीदे पर खड़े हैं, तो फिर उसके साथ भी हमारा ताल्लुक नहीं हो सकता। अगर वो सगे भाई हो, हाँ? सगे भाई हो, सगे भाई हो तो उसको समझाया जाएगा, बार बार समझाने के बाद ना समझे, मगर जो साहिब मामला है फतवा सिर्फ उस पर आएगा। थानवी काफिर है, मगर थानवी के अब्बा को तुम काफिर नहीं कर सकते, तुम्हारा बेटा काफिर हो गया तो अच्छा चलिए। তারপরে যদি কোন সুন্নি ওয়াহাবির মেয়ের বিয়ে, আচ্ছা বিয়েতে যদি কালেমা না পড়ানো হয় তাহলে আওলাদগুলো হালাল হবে না অন্য কিছু হবে? জি না, বিয়ের শর্তের মধ্যে কালমা কোনো শর্ত নয়। শুধু নতুন জীবনে নতুন জায়গাতে আমরা যাব, সেই জন্য জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা আল্লাহ যেন মাফ করেন, সেই জন্য আমার হযরতরা ইস্তেগফার এবং কালেমা শরীফ পড়িয়ে থাকেন, ঠিক আছে। যদি এটা না পড়ায় বিয়ে হয়ে যাবে, বিয়েতে কোনো অসুবিধা নেই, বা আওলাদের উপরে কোনো হারাম হালালের কিছু হবে না, হালালই হবে, ঠিক আছে। আর কিছু যুবকরা मुश्किल जवानों से आप थोड़ा पूछ लीजिए, जवान लोग हैं। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। প্রশ্ন হলো, যদি কোনো আলেম আমাদের গ্রামের নামাজ না পড়ে তাহলে তিনার ব্যাপারে কোনো নামাজি ব্যক্তি যদি আলোচনা করে তাহলে কি গুনাহ হবে? আচ্ছা, এই প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না। মানে একজন লোক নামাজ, এখানকার লোক এখানে নামাজ পড়ছে না, তাই তো? দেখুন, দুনিয়াতে বাবরি মসজিদ হোক, হুমায়ুনি মসজিদ হোক, শাহজাহানি হোক, আকবরী হোক, সওয়াব সবগুলোতে বরাবর। একমাত্র তিনটা মসজিদ ছাড়া, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, বাইতুল মাকদিস, এই তিনটে মসজিদ ছাড়া বেশি সওয়াবের নিয়াতে কোনো জায়গা থেকে কোনো জায়গায় যাওয়া চলবে না। যে আমাদের গ্রামের মসজিদে সওয়াব কম, আজকের হুজুর আসছে ওইখানে গেলে সওয়াব বেশি হবে, জি না। সে বরকতের জন্য যেতে পারেন, সওয়াবের বেশি নিয়ত করা চলবে না। এইবার যদি কোনো লোক আদত বানিয়ে নেয়, অভ্যাস বানিয়ে নেয়, এটা ঠিক হবে না। কেন? মহল্লার মসজিদ ওর জন্য আগে
মানে হক রাখে, মহল্লার মসজিদের নামাজ ওর জন্য হক রাখে। এবার যদি আকীদায় না মিলে তাহলে ও যেতে পারে, হলো। কিন্তু যদি আকীদা ঠিক থাকে তাহলে যাওয়া ঠিক হবে না। এবার যদি কোনো কাজে চলে গেল বা রেগুলার ও একটা জায়গাতে জব করে যেখানে ওকে যেতেই হয়, তো সেই কারণে যদি যায় তাহলে এ নিয়ে সমালোচনা করার কোনো দরকার হবে না। इन लोगों का कहना है हजरत कि नमाज के वक्त में उसको देख रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, दिन ब दिन 5 वक्त नमाज नहीं पढ़े। अब अचानक आके किसी दिन जोहर या असर पढ़ा दिया, तो ऐसे हालात में हम लोग उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे या नहीं? ও আচ্ছা আচ্ছা, ইমাম সাহেব এটা इमाम हो, বলছেন? हाफिज हो, कारी कोई भी हो, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যে কোনো লোক, মানে ও হয়তো দেখা গেল 3 ওয়াক্ত নামাজ পড়লো না, সে যে 2 ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়ে দিল, এরকম তো হযরত। দেখুন, এগুলো নামাজ না পড়া চরম বড় অপরাধ। যদি কেউ প্রকাশ্যভাবে নামাজকে ত্যাগ করে, বান্দা ফাসিক হলো। নামাজ ইসলামের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস। যে নামাজ পড়ে না আমরা তাকে কাফের বলি না, কিন্তু হাদিসে আছে। এইবার এই কাফের ব্যাখ্যা আমরা করি মাহরুমুন আন নি'মাতিল্লাহ, अल्लाह की नेमत से वो महरूम होगा, मगर वो दायरा इस्लाम से खारिज वाला काफिर नहीं होगा, কিন্তু ফাসিক গুনাহগার অবশ্যই হবে। এবার যদি ওটা আদত বানিয়ে নেয় আর ওর গুনাহ জাহির থাকে তাহলে ওকে ইমামতি না করানোই দরকার। এইবার মাখফি গুনাহ, ঘরের মধ্যে পাপ হযরতের আছে, আমার আছে, ওটা আলাদা জিনিস। কিন্তু পাপ যখন এলানিয়া হয়ে যায় তো তখন ও ফাসিক বি জাহির হয়ে যায়, তখন ওর পিছনে হবে না, হলো। এগুলো খেয়াল করতে হবে। हजरत कोई सुन्नी आलिम देवबंदी वहाबी या हमारे सुन्नी अकीदे से जो हटके हैं उनकी निकाह पढ़ाए तो उनके लिए मसला क्या है? देखे, मौलवी पर प्रेशर नहीं देना है। पहले हम कमेटी वालों को कहते हैं कि कमेटी वाला इतना मजबूत हो जाए कि विदेशी इमाम साहब बाहर के हैं, उन तक लोग पहुंच ही ना पाए। कमेटी वाले जुमा के दिन, ईद के दिन ऐलान कर दे कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब किसी वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, मजहबी, लामजहबी की शादी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, देखिए हम बाहर से हैं, हजरत बाहर के होंगे, ये बाहर के होंगे, तो दूरेर ইমাম তার উপরে জবরদস্তি ফতোয়া না থোপে কমিটির উপরে আগে থোপতে হবে। কমিটির লোক যদি স্ট্রং থাকে তাহলে আলিমের উপরে জিম্মাদারি আর থাকবে না। কিন্তু যদি ভুলে পড়িয়ে ফেলে, যদি পড়িয়ে দেয়, ওকে তওবা করে নেওয়া দরকার যে ये काम मुझसे गलत हो गया, मगर शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी। अगर बंदा खालिस वहाबी है और काफिर साबित हो गया, फिर वो शादी नहीं। মসজিদের ইমামের বেতন কতটা হওয়া উচিত मैं कैसे बताऊं, किंतु इतनी बात जरूर कहना है मुझे। देखिए, असल में मुजाहिद और दीन और सुन्नियत के जो मुजाहिद होते हैं वो मस्जिद के अइम्मा-ए किराम होते हैं, अइम्मा-ए मसाजिद, और मदरसे के जो मुदर्रिसीन होते हैं, यही लोग असल में मुजाहिद हैं। ठीक है, एक मौलवी को अब लाते हैं, 1.5-2 घंटे की तकरीर करता है, बंदा 20-25-30 हजार उनको दे देते हैं, और वो पूरा साल, पूरा महीना यही रहकर दीन की चौकीदारी, मसला के आला हजरत पर पहरेदारी करते हैं, मगर आप उनके लिए सोचते ही नहीं। कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि हजरत ममता दीदी का पैसा मिला के हम 7,500 देते हैं। मैंने कहा यार, कितना बड़ा जालिम होगा वो आदमी जो ममता दीदी का पैसा भी इसको जोड़ देता है। यार उसको छोड़ो ना, कि उसको बोनस में रहने दो, कि वो हमारे इमाम को मिलता है, हमें खबर ही नहीं है, ऐसा तो समझो। नहीं, उसको भी जोड़ लेते हैं। बोले हम नहीं, पहले तो हजरत देते थे, जो है मतलब 7,500 देते थे, तब ममता का पैसा जब आ रहा है तो हमने 5 कर दिया है, 2,500 घर से आ रहा है। यार अस्तगफिरुल्लाह, ये गलत बात है, गलत बात है। उलमा किराम पर ख्याल रखिए, इस जमाने में कम से कम 15 से 20 हजार की तनख्वाह तो होनी चाहिए, कम अज कम होनी चाहिए। भाई हम लोग तो हर रोज हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाली जाती है 3-3, 4-4, 5-5 हजार की। मैं अभी मुंबई गया तो फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई, समझ गए। कलकत्ते से मेरी फ्लाइट थी तो 6,000 का टिकट लिए थे, तो फ्लाइट हमारा कैंसिल हुआ तो 6,000 वापस आ गया।
दूसरी फ्लाइट पर लेने की लोग कोशिश किए, दूसरी फ्लाइट 35,000 मांगा। वो लोग तैयार हुए कि हजरत हम 35,000, मैंने कहा नहीं नहीं, 6,000 का टिकट तुम 35,000 में खरीदो, मुझे वो कबूल नहीं है। तो बोले हजरत हम देंगे ना। मैंने कहा यार तुम्हारा जेब हमारा जेब बराबर है, भाई हो तुम मेरे, तुम्हारे जेब से पैसे निकाल जाए तो क्या वो मेरा पैसा नहीं है? फिर उसके बाद वहां से मैं ट्रेन से बागडोगरा आया, यहाँ से 6,000 का टिकट 17,500 में लिया गया। हमने वहां पर 15,000 बचा दिया। वापसी में फिर मुझे आना था, तबीयत मेरी खराब हुई, 10 तारीख का टिकट था। मैंने कहा मुझे 8 तारीख का टिकट हो जाता मैं चला जाता। तो बोले मैं देखता हूँ। वहां जा कंपनी को फोन लगाया तो बोले नहीं, आप अगर कैंसिल करते हैं तो पूरा पैसा माइनस जाएगा, नया टिकट लेना पड़ेगा। तो वो लोग बोले हजरत हम कर दे रहे हैं, अब चले जाइए 8 तारीख। मैंने कहा नहीं, 2 दिन यहीं पर रह लूंगा, मगर आप लोगों का 17,000 रुपये मैं बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, एक दूसरे पर ऐसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। আমার একটা প্রশ্ন, আচ্ছা এটা এই যে কিস্তির বিষয়টা আমার সঙ্গে পার্সোনাল জেনে নেবেন। হ্যাঁ, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে এনিথিং ইন ফ্রন্ট অফ ক্যামেরা, ঠিক আছে না? কিস্তির বিষয়টা বা সুদ বা লোন এটা আমার সঙ্গে ঘরে জিজ্ঞেস করে নেবেন, ঠিক আছে?